Welcome students. Welcome to the new class. Today we are going to discuss Fire Hymn written by Keki and Daruwala. He is an Indian poet. He also had the opportunity to work in Indian Department of Police. He was an IPS officer and joined this service in 1958. As a poet, he also received Sahitya Akademi Award, which he later on returned on some ground. So, the main characteristic of his poems are his uh, cynicism and crude depiction of the realities of life. But at the same time, he also used Indian mythologies and philosophical aspects very efficiently in his poems. Here as well, we find the uh, philosophical aspects of two religions, Zoroastrianism and Hinduism, though it is not necessarily these two religions that always find place in his poems, but here he focuses on these two religions. Actually, the underlying theme of the poem is, as the title suggests, is the attitude towards fire. Hindus and Persians, means Zoroastrians, both consider fire as sacred. And both these religions, dead bodies of human beings are considered impious. But there are differences as well. In spite of all these similarities, there are differences in attitude. Hindus consign their dead bodies to fire, but the Zoroastrians just think that their attitude towards fire is that the dead body is should not be consigned to fire, that it makes fire contaminated, since fire is very pious, very sacred for us, so it should not be consigned to fire. This is the basic difference in religious practice of these two religions, and this is the main predicament of the narrator in this poem. यही मेन कन्फ्यूज़न है. आग को हिंदू और पारसी दोनों पवित्र मानते हैं, लेकिन हिंदू अपने मृत शरीर को आग के हवाले कर देते हैं और पारसी उसको नहीं करते. एक्चुअली पर्सियंस थ्रो देयर डेड बॉडीज ऑन टावर ऑफ साइलेंस and let the scavenger birds of prey feed on them. वो सोचते हैं कि मरने के बाद भी पशु पक्षियों के काम हमारा शरीर आ जाए. तो इस तरीके से ये अंतर है, और वो अंतर इस पोएम में दिखता है. तो शुरुआत होती है, फर्स्ट जो स्टेंजा है वो हिंदू फिलॉसफी जो है, हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, जिसमें कि शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है. दे कंसाइन देयर डेड बॉडीज टू फायर, दैट हैज बीन डिपिक्टेड, एंड द narrator is a Persian, a Zoroastrian, and he says that he will save the fire from the scene of forgetfulness, because he sees that some part of dead bodies are not burned, and this is he takes it as a sign of debauchery of fire. So this is a child psychology, what he thinks, how he perceives things. But 20 years later, he has to consign his eldest child to the fire, going against his religious practice, because the time, the circumstances force him to do so. So let's start the poem, and you will see what the poet wants to say. This poem relates to his personal experience perhaps, and there are also religious experience of the poet that can be seen in the poem. The burning ghats erupted phosphorescence, and wandering ghost lights frightened passerby. The burning घाट is an Indian word. जो स्मशान घाट की बात होती है, where we consign our dead bodies to fire, where we perform our last rituals.
तो उसको बर्निंग घाट के रूप में यहाँ पर कहा गया है। इरप्टेड फॉस्फोरसेंस, फॉस्फोरसेंस इज अ साइंटिफिक फेनोमेनन। जब हम, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने प्री बोर्ड लेवल पे कि जब चांद की रोशनी पड़ती है और हवा का झोंका होता है, उस समय हड्डियों का के साथ उसका संपर्क होता है तो कुछ हवा में आग की लपटें दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से एक फ्राइटनिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। श्मशान घाट के आसपास जैसा भयावह माहौल होता है वैसा करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। एंड वंडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर बाई, और जो हवा, जो आग की लपटें जो भूत की तरह घूम रही हैं, उससे आने जाने वाले लोग, जो गुजरने वाले लोग हैं, वो डर जा रहे हैं। एज मून लाइट स्कटल्ड अमॉन्ग द बोन्स, और ऊपर से चांदनी रात है और चंद्रमा की जो रोशनी है वो तेज़ी से हड्डियों पर पड़ रही है, तो वो हड्डियाँ हवा में घूमते हुए आग की लपटें फेंक बिखेरते हुए दिख रही हैं और इससे आने जाने वाले लोग डर रहे हैं। वंस स्ट्रॉलिंग एट dawn past river bank and ghat, we saw embers losing their cruel redness to the grey ash that swallows half-cooked limbs, bore witness to the fire's debauchery. एक बार उधर से टहलते हुए नदी के किनारे से घाट के पास ये लोग गुजर रहे थे, तो वी सॉ, वी हियर वी डिनोट्स दैट समवन एल्स वाज देयर विद द नरेटर, कोई और भी था उसके साथ। उन लोगों ने देखा एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूएल रेडनेस, जो आग की लपटें थी उनकी लालिमा खत्म हो रही थी, जो क्रूर लालिमा थी जिसमें सब कुछ जल जाता है, भस्म हो जाता है, वो अब समाप्त हो रही थी। टू ग्रे एशेज, और राख में परिवर्तित हो रही थी। मीन्स द फायर वॉज टर्निंग इन टू एश, इट इज लॉसिंग इट्स रेडनेस दैट swallows ऑल, जो कि सब कुछ निगल लेता है, सब कुछ भस्म कर लेता है, वो अब राख के रूप में बदल रहा था। हाफ कुक्ड लिम्स बोर अ विटनेस टू द फायर्स डिबाउचरी, बट एट द सेम टाइम there were some parts of human body that were still half burnt, still not completely burnt, bore witness to the fire's debauchery, और वो ये बता रहा था कि आग भी भ्रष्ट हो चुकी है, आग भी अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर रही है। My father said, you see those half burnt fingers, मेरे पिता ने, यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि वी में कौन दो लोग थे, द नरेटर एंड हिज फादर, जो बात बता रहा है और उसके पिताजी भी साथ में थे। माई फादर सेड, उसके पिताजी बोलते हैं, यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, तुम उन आधी जली हुई उंगलियों को देख रहे हो, एंड बोन स्टब्स, और उन हड्डियों के ठूंठ को देख रहे हो, अवशेष को देख रहे हो। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, कभी कभी आग भी भूल जाती है कि ये मृत है। ए जोरोस्ट्रियन आई, माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड into a little knot of pain, I swore to save fire from the scene of forgetfulness. जोरोस्ट्रियन मैं था, और बच्चे के रूप में मेरा जो गुस्सा था उसकी वजह से मेरी उंगलियां भींच गईं, और अंदर से तकलीफ हुई कि आग, which is considered so sacred, so pious, so omnipotent in our religion, is स्टिल वल्नरेबल टू फॉरगेटफुलनेस, वो भी भूल सकता है। इस बात से बच्चे के मन पर जो असर पड़ा, जो तकलीफ हुई, उससे उसकी उंगलियां भींच गई, उसने मुट्ठी बंद की और गुस्से में आई सोर टू सेव फायर, और शपथ लिया कि अग्नि को बचाऊंगा फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूलने के पाप से। ये फर्स्ट पार्ट है पोएम का। देन द सर्कमस्टांसेस चेंज। इट नेवर फॉरगॉट, ये बात कभी भूली नहीं दिमाग से। वो जो बचपन की घटना थी कि श्मशान घाट के पास से गुजर रहे थे, डेड बॉडी जल रही थी, उसमें से कुछ अधजले शव जो थे, उससे इसके मन पर, बच्चे के रूप में मन पर जो प्रभाव पड़ा था, उसने शपथ लिया था कि अग्नि को भूलने के पाप से मैं बचाऊंगा। ये एक तरीके से रिलीजियस जो एक फंडामेंटलिज्म है कि हम अपने धर्म के बारे में जो जानते हैं, जो सुनते हैं, चाहते हैं कि वैसा ही हो, वो एक बच्चे के रूप में उसने शपथ लिया था। अब फिर परिस्थितियां बदलती हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये आता है, इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 years सिंस, वो घटना कभी नहीं भूली और उसके 20 वर्ष बीत गए। एज आई कॉन्साइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, एंड आई कॉन्साइंड माई फर्स्ट बॉर्न to the flames. First born means
जो सबसे पहला पुत्र था, जो बड़ा सबसे बड़ा बेटा था, उसको इसने अग्नि के हवाले किया। मीन्स 20 साल के बाद वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी होती है, उसका बच्चा होता है, और वो उस बच्चे के मृत्यु पर ये उसको अग्नि के हवाले करता है। मीन्स पर्सियन होते हुए इसको हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स। और कारण क्या था कि जो टावर ऑफ साइलेंस उन लोगों का होता है जहां वो लोग अपना शव फेंक देते हैं जानवरों के खाने के लिए, कि अंतिम शरीर का उसी तरीके से उनका कर्मकांड होता है, तो वो भी वहां से 1000 मील था। तो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू टेक द डेड बॉडी ऑफ हिज एल्डेस्ट सन ऑल the way 1000 miles away. So he was forced to follow the rituals of Hindu religion. The fire hand said to me, you stand forgiven. चूंकि हिंदू रीति रिवाज से हो रहा था, तो वहां पर जो अग्नि का श्लोक पढ़ा जा रहा था, उस श्लोक में एक फ्रेज था, यू स्टैंड फॉरगिवन। यू मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स वेन एवर वी परफॉर्म पूजा। अग्नि की भी पूजा होती है उसमें, और अग्नि से हम लोग माफ़ी भी मांगते हैं अपनी गलतियों के लिए पूजा के दौरान। तो उस तरीके से मृत्यु के उपरांत भी जो अग्नि का श्लोक पढ़ा जाता है, उसमें भी वैसा कुछ फ्रेज उनको मिला, सुनाई दिया कि यू स्टैंड फॉरगिवन, आपको माफ़ किया जाता है। जो भी आपने जन्म पहले गलतियां की होंगी, सबके लिए माफ़ किया जाता है। ब्रोकन येट रिबेलियस आई सोर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। मैं टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर का जो विद्रोही व्यक्ति था वो जीवित था। आई सोर दिस टाइम, और इस बार मैंने शपथ लिया, टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, अग्नि को माफ करने के पाप से बचाऊंगा। कि जीवन के हर पाप को अग्नि माफ कर देता है, तो ये कैसा ये। तो इस लास्ट एंड से पता चलता है कि पोएट का जो प्रेडिकामेंट था वो तो था ही, लेकिन साथ ही साथ एक अंदर उथल पुथल भी थी कि मैं अपने रिलीजियस रिचुअल के हिसाब से अपने पहले पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया, और इसलिए वो सोचते हैं कि अग्नि को हम लोग इतना पावरफुल मानते हैं, गॉड लाइक स्टेटस देते हैं, और सबके बाद ये इतना लीनियंट है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए। तो वो एक उनका अपना जो थॉट है वो है, और उसी के हिसाब से ये पोएम एंड होता है। बट द अंडरलाइंग थीम इज कि हमारा रिलीजन जो भी हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कई बार कि हमें वहाँ से डेविएट होना पड़ता है। वी हैव टू गेट डेविएटेड इफ द सर्कमस्टांसेस force us, if the time presents such imperatives in our life. थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा। इसमें बहुत कुछ वर्ड्स वैसा कॉम्प्लिकेटेड बहुत नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको दिखा होगा कि कुछ वायलेंट टाइप का भी इन्वायरमेंट है। तो वो बहुत सारे क्रिटिक और जो स्कॉलर्स हैं वो दैट एट्रीब्यूट टू द प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऑफ K.K.N. Daruwala, since he was in police service. So obviously there were some violent expression in his poems, and that's all. There is nothing much to understand in this poem, to know in this poem, and we will continue with our poem series. Thank you. देखते रहिए। लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए ताकि इसका सदुपयोग हो। थैंक यू। हम लोग कंटिन्यू करेंगे।